let us begin right away. So the first thing that we understand is that this is the D-Day. 13th of September is the D-Day, 2 to 5 p.m. So again, I will tell you that there is no question whether this exam will be postponed any further or not. So this exam is going to be held on 13th of September, and many students are having anxiety about this. I will advise them not to think this question at all. The question is not whether the exam is going to happen or not. It has been settled. This is happening on 13th of September. There is no doubt about it. Read your admit card, read the standard operating procedures that have been provided by the NTA for every student to follow, and clearly understand what exactly is needed. JEE main has already been started, and the students are very satisfied with the standard operating procedures in place at the centers. So no need to worry. You can easily follow simple standard operating procedures and you will not get infected with COVID-19. So this anxiety should be gone. So this is what is preventing students from concentrating actually. So many questions have been asked from us that it is very difficult to concentrate. The simple reason is that you are thinking about the wrong question. So if you are thinking about the wrong question, the question that is not under your control, you cannot change it. Please do not think about it. This exam is happening on 13th of September. So मैं ये कह रहा हूँ कि 13th of September जो आपका पेपर है, biology is very, very important. Biology is important because this comprises approximately, it comprises actually 50%. 50%. Why I was saying approximately? Because if you have seen the paper of chemistry as well, there will be 2 questions of biomolecules that a good student in biology can actually do very well. Probably they do not teach biochemistry very, very well in your chemistry classes, and that onus comes on the biology teachers. So if you are good in biology, then these 2 questions as well. So we are talking of 92 questions out of 180 that would be covered by biology. दूसरी चीज, एक चीज देखिए, now this thing can be completed in 60 minutes. This is the most time I am saying. Ideally मैं ये चाहता हूं कि आप 45 से 50 मिनट में इस पेपर को खत्म करें, including OMR filling. Including OMR filling. This is what I want. If you want to complete the paper entirely, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में एंजाइटी नहीं पालना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत जरूरी है कि बायोलॉजी आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज, दीज क्वेश्चंस आर ओनली 10 to 15 सेकंड्स क्वेश्चन. सो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय, malignant tertian malaria is caused by. So the answer is Plasmodium falciparum. So you can count the seconds, and I am now filling the OMR bubble, and like this it will not take more than 15 seconds. So which means that around 60 to 70 questions are like that, and that is why I am saying that it is very, very, very possible to complete the paper in 45 to 50 minutes. You प्रैक्टिस लाइक दिस, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए घर में कि एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बने. जहां आप 1 घंटे से कम में बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपके पास 2 घंटा या 2 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बचता है, एंड देन देयर इज नो प्रेशर. आप देखिए प्रेशर में अनफोर्स्ड एरर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इनकर होती है. द एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट डिफिकल्ट. ये पेपर मुश्किल नहीं आएगा. ये पेपर में प्रॉब्लम ये है कि आपको 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपने गलती करी तो एक नेगेटिव मार्किंग उसके साथ एसोसिएटेड है. सो दिस इज द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एक्चुअली. सो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, सो 90% ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स उनको ये लगता है कि उनकी बायोलॉजी स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री प्रॉब्लम है. तो मैं जब भी स्ट्रांग मानूंगा आपकी बायोलॉजी, तो मुझे ये बताइए कि क्या आप 1 घंटे से कम में 300 से ऊपर
पर नंबर ले आते हैं। अगर आप 300 नंबर बायोलॉजी में लेकर के आ रहे हैं 2 घंटे में, तो मैं आपकी बायोलॉजी को स्ट्रांग नहीं मानूंगा, क्योंकि आपका पेपर खत्म नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में टाइम लगता है और उनके लिए आपको एडिक्वेट टाइम छोड़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी बहुत से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हाँ, कैलकुलेशंस होती हैं उनमें, और कैलकुलेशंस को ठंडे दिमाग से, बिना पैनिक से और टाइम इन्वेस्ट करके करेंगे तो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। जल्दीबाजी में करेंगे, अगर टाइम की कंस्ट्रेंट होगी, तो वहां पर फिर आपके एरर आने शुरू होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बायोलॉजी की जो 2 इंपॉर्टेंस है मुझे समझ में आ गई। पहली चीज तो यह है कि अगर मैंने अपना पेपर बायोलॉजी से शुरू किया और 1 घंटे में मुझे ऐसा लगा कि मेरे 300 नंबर से ज्यादा आ गए हैं, सो अ जॉब वेल बिगन इज हाफ डन, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। काफी टाइम आपने छोड़ दिया होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और आप बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी से फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री करेंगे। आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज देखिए, OMR फिलिंग में आप एक काम कीजिए कि जैसे ही आपने एक पेज में, मान लीजिए जब आप एक पेज को स्प्रेड करते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन है, उसमें जो भी क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड है उस OMR को साथ में भरना शुरू कर दीजिए। OMR को लास्ट 10 मिनट के लिए नहीं छोड़िए। उस टाइम पर इन्विजिलेटर आपको टाइम की भी याद दिला रहा होता है कि बच्चों जल्दी करो जल्दी करो। ये जो चीज आपके दिमाग में घुसती है, ये एरर प्रोन करती है आपको। सो आप आखिरी 10 मिनट में OMR भर रहे हैं, उधर से इन्विजिलेटर कह रहा है ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट, ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट, प्लीज हरी, बहुत जल्दी कीजिए, आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये सब चीजें क्या करती हैं, आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करती हैं। और वहां पर, क्योंकि OMR वो चीज है जो एक्चुअली चेक होती है, जिस पर एक्चुअली आपको सीट मिलना है, तो उसको बहुत रिलीजियसली, बहुत डिलीजेंटली भरिए उसको। बिल्कुल भी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन आता है और आपने क्या कर दिया, उसका आंसर सही आता है। दिस इज नॉट द ओनली थिंग। ये सही लगना चाहिए OMR में। तो अगर किसी का आंसर 3 है, अगर आप 3 मार्क करेंगे तब +4 नंबर आएगा। आपका पेपर चेक नहीं हो रहा है, OMR चेक हो रहा है। पहली बात तो ये समझिए।